Hello viewers, welcome or welcome back to the video lecture. Hmm. Hello viewers, welcome or welcome back to the video lecture. In this video lecture, we will cover the rest topic of our chapter third, that is later Vedic period. ये जो था 1000 to 600 BC के टाइम एरा को डिनोट किया जाता है लेटर वैदिक पीरियड. द आर्यन The Aryan further moved towards east in later Vedic period. The Shatpat Brahmins refer to the expansion of Aryan to eastern Gangetic plains. Several tribal groups of king and kingdom are mentioned in later Vedic literature. One important development during this period was the growth of large kingdom. Later Vedic period के टाइम में दो बहुत ही important kingdoms flourish हुए, कुरु kingdom and पांचाल kingdom. कुरु kingdom हमारा दिल्ली के पास के एरिया को बोला जाता था और पांचाल kingdom जो था वो यूपी के अपर पार्ट या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में पांचाल kingdom flourish किए थे. Parikshit and Janmejya were the famous rulers of Kuru kingdom. Parvahana and Jaywali was popular kings of Panchalas. ये बहुत ही important terms हैं, बहुत important names हैं. इनको आप एक बार comment section में डाउन लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा आपको याद रह जाए और एक ऐसे भी हो जाएगा मुझे भी कि आपने वीडियो देखी है, मुझे भी अच्छा लगेगा. Parikshit and Janmejya was famous ruler of Kuru kingdom. Pravahana and Jaywali was popular kings of Panchalas. He was the patron of learning. Learning के जो पेटनर्स बताए जाते हैं ये जो हमारे किंग्स थे कुरु और पंचाल किंगडम के. After the fall of Kurus and Panchal, other kingdoms like Kosala, Kasi, Vidya came to prominences. कोसाला, काशी और वेद्या इनकी लोकेशन जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, बट वैसे मैं आपको आइडिया दे देती हूँ. विदेहा बिहार या उसके लोअर सेक्शन का है. मैं देखती हूँ, एक फ़ोटो मैंने सेव की थी. यस, कुरु, पंचाल, कोसाला, विदेहा और काशी. ठीक है, तो ये तो मेंशन किए गए हैं हमारी उसमें टेक्स्ट बुक में, पर ये बाकी गांधारी और ये सब सिंधु का जो एरिया है ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो ये इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए. The famous ruler of Kasi was अजातशत्रु. अजातशत्रु लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट रूरल है. हिस्ट्री की जब बात आती है तो इनका नाम बहुत जगह इन्होंने बहुत ये पेट्रन रहे हैं. हम आगे बढ़ेंगे किस किस पर्टिकुलर चीज़ के या फिर क्या क्या चीज़ें इन्होंने इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. जनक वॉज द किंग ऑफ विदेही with its capital Mithila. His court was adorned by scholar Yajnavalkya. Magad, Anga and Vanga seems to be easternmost tribal kingdoms. इनके नाम यानी कि वैसे देखा जाए तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे की टर्म्स हैं जिनके ऊपर आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे. The later Vedic text also refers to 3 divisions of India. Later Vedic text में इंडिया के 3 divisions बताए गए हैं, आर्यव्रत, मध्य देश एंड दक्षिण पथ. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड. मैनी जना एंड ट्राइब्स वर अमेलगमेटेड टू फॉर्म जनपद और राष्ट्र in later Vedic period. Hence, the royal power had increased along with the increase in size of kingdoms. The king performed various rituals and sacrifices to strengthen his position. They include Rajyasuya and Aswamedha. सॉरी, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है. हॉर्स सेक्रीफाइस, अश्व, एंड वज्पेया, चैरियट रेस. द किंग ऑल्सो एज्यूम टाइटल्स लाइक राजा विश्वासजन एंड अहिला भुवनापति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ. एकरथ एंड समरथ, सोल रूरल. एक रथ, एक अकेला राजा.
In the later Vedic period, a large number of new officials were involved in administration in addition to the existing Purohit, Senani and Gramani. इनके अलावा भी बहुत सारे न्यू ऑफिशियल्स ऐड किए गए, जैसे कि ट्रेजरर ऑफिस, tax collector, royal messenger. At the lower level, administration was carried on by the village assemblies. The importance of Samiti and Sabha had diminished during the later Vedic period. Economic conditions की अगर हम बात करें तो iron was used extensively in this period, and this enabled the people to clear forest and to bring more land under cultivation. Agriculture became the chief occupation. देख रहे हो कि later Vedic, हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में भी कहीं ना कहीं आयरन का यूज़ किया जाता था एट द एंड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, बट अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो बहुत ही एक्सटेंसिवली आयरन का यूज़ होने लगा, और आयरन की मदद से उन्होंने इतने सारे इक्विपमेंट्स बना लिए थे कि वो फॉरेस्ट को क्लियर करके लैंड अंडर कल्टिवेशन लेने लग गए. एग्रीकल्चर बिकेम चीफ ऑक्यूपेशन. इम्प्रूव टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स वर यूज फॉर कल्टिवेशन. बिसाइड्स बार्ले, राइस, wheat वर ग्रोन. Knowledge of manure was another improvement. Industrial activity became more varied and there were greater specialization. Metalwork, leatherwork, carpentry, pottery made great progress. In addition to internal trade, foreign trade became extensive. The later Vedic period were familiar with the sea and they traded with countries like Babylon. इसकी मुझे करंट नाम और लोकेशन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा. अ क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट्स केम टू एग्जिस्टेंस. वानिया Vesas also carried on trade and commerce. They organized themselves into guilds known as Ganans. Beside Nishka of Rig Vedic period, gold and silver coins like Sataman and Krishnala were used as media of exchange. ये करेंसी के नाम है ऋग वैदिक पीरियड के. सोशल लाइफ की अगर हम बात करें सो 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र of the Varna system were thoroughly established during later Vedic period. 2 higher classes, Brahmins and Kshatriya, enjoy privileges that were denied to Vaishya and Shudra. The Brahmin occupied a higher position than Kshatriya, but sometimes Kshatriya claims a higher status over Brahmins. Many subcastes on basis of their occupation appeared in the period. In the family, the power of father increased during the later Vedic period. There was no improvement in status of women. They were still considered inferior, subordinate to men. Women also lost their political rights of attending assemblies. देखो, अच्छा तो कुछ नहीं हुआ वुमेन्स के लिए, पर बुरा ज़रूर हो गया कि अर्ली वैदिक पीरियड में उनको परमिशन थी असेंबलीज़ को अटेंड करने की, पर लेटर वैदिक पीरियड में जब ये कास्ट सिस्टम प्रिवेल होने लग गया तो वुमेन्स के पास से वो अधिकार भी ले लिया गया. और इसमें बताया जा रहा है कि 4 कास्ट थी. कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपर कास्ट समझा जाने लगा और वैश्य और शूद्र को लोअर कास्ट समझा जाने लगा, जिसके अंदर कई बार ब्राह्मण को ऊपर की पोजीशन दी जाती थी और कई बार क्षत्रिय को ऊपर की पोजीशन दी जाती थी. और फैमिलीज़ की बात करें जो फादर का जो वो एक पेट्रिज्म था वो इंक्रीज होता गया. इम्प्रूवमेंट नहीं हुई वुमेन के स्टेटस में, पर फिर भी वुमेन को इन्फीरियर कंसीडर किया गया और सबऑर्डिनेट्स टू मेन की जो सबऑर्डिनेट टू मैन का मतलब क्या है कि जो वो कहेंगे उसमें हाँ में हाँ या फिर उनके आंसरेबल होना. चाइल्ड मैरिज हैड बिकम कॉमन. चाइल्ड मैरिज जिसका कोई नाम ही नहीं था वो कॉमन बन चुका है. अकॉर्डिंग टू Atreya Brahman, a daughter has been described as source of misery. However, the women in royal household enjoy certain privileges. छोटी फैमिलीज़ में डॉटर को सोर्स ऑफ मिजरी बताया जाने लगा और वुमेन जो रॉयल हाउस की थी उनको फिर भी कुछ प्रिविलेजेस मिली जाने लगी. रिलीजन की बात करें तो गॉड जो थे अर्ली वैदिक पीरियड के वो भी जैसे कि इंद्र एंड अग्नि
उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को लॉस्ट कर दिया। प्रजापति जिसको क्रिएटर बोला जाने लगा, विष्णु जो कि प्रोटेक्टर के रूप में थे, एंड रुद्र द डिस्ट्रॉयर बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। सैक्रिफाइस वाज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन द रिचुअल्स कनेक्टेड विद देम बिकेम मोर एलोबरेटेड। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड, दैट ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीजेज। अब क्या है, प्रेयर्स की बात तो होने लग गई है कम, सैक्रिफाइस की होने लग गई है ज़्यादा। priesthood became a profession and a hereditary one। priesthood पहले तो किंग हेरिडिटरी होता था ना, अब priesthood भी प्रोफेशन बन गया है और हेरिडिटी होने लग गई है कि एक प्रीस्ट था, उसका बेटा भी उसकी डेथ के बाद में प्रीस्ट बनेगा और वो एक किंग के साथ रहेगा। द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस वर इन्वेंटेड एंड elaborated by priestly classes। Therefore, towards the end of this period, there was a strong reaction against priestly domination and against sacrifices and rituals. The rise of Buddhism and Jainism was a direct result of these elaborative sacrifices. Also, the authors of Upanishad, which were the essence of Hindu philosophy, turned away from useless rituals and insisted on true knowledge for peace and salvation. With this we have finished our lesson and I hope आपको कुछ समझ आया होगा। अगर मैं कहीं कुछ मिस्टेक मुझसे हो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसको ध्यान दूंगी।